Good morning, students. Today we will discuss the major oceanic routes of the world. I already told you that there are 8 major oceanic routes in the world, and we will discuss them one by one. Students, to discuss the oceanic routes, we will take the help of map. With the map, you can better understand the all the oceanic routes in the world. So please concentrate on the map. First of all, I told you that the equator divided all the ocean in their northern and southern part. So here you can assume this is an equator, and equator, above the equator the oceanic part is North Pacific, North Atlantic, like that, and below the equator it is called South Pacific and South Atlantic. So first route is our the North Atlantic route. Atlantic Ocean lies between the America, North America, South America, Europe and Africa. So here this part is Atlantic Ocean. From it lies from now north to south. You already read this about this in your 11th class. So this is your Atlantic Ocean. So first of all, North Atlantic Ocean means part of the Atlantic Ocean above the equator. Now you can see above the equator, on the western side we have North America, and the eastern side we have Europe and some part of Africa also. So the part of America which lies eastern side of North America, and western side of Europe and Africa. So this Ocean, North Atlantic Ocean, joins the eastern America with the western Europe. So the North Atlantic route is the major or most important oceanic route because it connects the two developed continents of the world, which are North America and Europe. So this is very busiest route because it connects two developed countries of the world. So eastern United States and western Europe are connected by this busiest route, and world's cargo, 1/4 of world cargo is transported along this route. World have total 55 major ports, out of which 28 ports are lying on this route. Both the sides have developed major ports. American side major ports are New York, Montreal, Quebec, Halifax. All these are the Boston, St. John, Baltimore. These ports are located on the eastern side of the America, and western side or eastern Atlantic Ocean. European side, you can say the major ports are London, Liverpool, Glasgow, Manchester, Southampton, Rotterdam, Hamburg, Stockholm, Oslo. These are the major ports lying on the eastern side, means European side. So both of the countries are very developed countries. So main rich agriculture, commercial and industrial regions of Europe export large quantities of manufactured items. So, students, you must remember that mostly Europe export mostly manufactured goods to the world countries. So Europe export large quantities of manufactured items like textiles, chemicals, machineries, fertilizers, steel and wine to the United States and Canada through this route.
यहाँ से जो यूरोप के इस पार्ट से ये चीज़ें जो है मैन्युफैक्चर गुड्स यहाँ पर भेजी जाती हैं यूरोप और कनाडा के पार्ट्स में। और यूरोप और कनाडा से जो है फूड ग्रेन्स, रॉ मटेरियल लाइक वीट, वुड पल्प, कॉपर, आयरन एंड स्टील, ये ट्रांसपोर्टेड इक्विपमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो अमेरिका से यूरोप तक भेजी जाती हैं। तो यहाँ से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और यहाँ से फिनिश्ड गुड्स जो हैं वो अमेरिका को भेजे जाते हैं। सो दिस इज़ द मेन बिजिएस्ट रूट इन द वर्ल्ड, that is North Atlantic Oceanic route. Now the second one is the Mediterranean and the Indian Ocean route. Mediterranean and Indian Ocean route, here you can say this is a Mediterranean Sea between the Europe and Africa. This part, white part you can see, this is Mediterranean Sea. Along with it, Red Sea or in Red Sea is also there. So this route connects. पहले क्या होता था कि जो ये रूट था तब तक हमारा स्वेज कैनाल नहीं बना था, तो शिप्स जो हैं वो यूरोप के साथ ट्रेड करते थे। आपने ब्रिटिश एम्पायर में भी पढ़ा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आते थे। अब ब्रिटिशर्स यहाँ से कैसे आते थे, आप देखोगे यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ आपको मुंबई दिख रहा है, ये हमारा इंडिया है। तो यहाँ से जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ लैंड एरिया से तो आते नहीं थे, ठीक है। तो वो कहाँ से आते थे, ओशनिक रूट से। कहाँ से उनको घूमने के आना पड़ता था, ये आप लंदन देख रहे हो, यहाँ से ये आते थे, अफ्रीका को क्रॉस करते थे, अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट को। यहाँ केप टाउन है, केप टाउन पोर्ट को क्रॉस करने के बाद ये यहाँ से घूमकर मुंबई, कोलकाता तक पहुँचते थे। तो ये जो हमारा पूरा रूट है दैट इज कॉल्ड मेडिटेरियन ओशनिक रूट एंड इट कनेक्ट्स हियर। नाउ यू कैन सी इट कनेक्ट्स Western Europe to the Western India and eastern part of Africa. So it connects Eastern Africa, Western India, and some part of Asia and Australia also passes through through this route. Because if you will see the map on the globe, you will find the ऑस्ट्रेलिया हेयर, यहाँ आपको मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो यहाँ से घूमकर यहाँ पर जाता है ट्रेडिंग के लिए। सो दिस रूट कनेक्ट्स ईस्टर्न अफ्रीका, दिस पार्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्टर्न इंडिया, और यहाँ पर आपका सारा एशिया आ गया। फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया, दीज कंट्रीज ट्रेड विद द यूरोपियन countries through this route Mediterranean Sea. So the east बाउंड कार्गो मेनली, अब यहाँ से ईस्टर्न साइड से आपको पता है कि आप इंडिया की ही हिस्ट्री उठा के देखो, एशियन कंट्रीज जितनी भी हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में रिच थी, स्पाइसेस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें थी। तो अब जो है थोड़ा सा जो है चेंजेस आया कि यहाँ पर मशीनरी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर वेस्टर्न साइड से, यानी यूरोपियन जो कंट्रीज़ है वो यहाँ से क्या भेजती थी, एशियन कंट्रीज़ को मशीनरी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यानी फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करती है। जबकि यहाँ की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़, ये यहाँ से इस वेस्टर्न यूरोप को क्या चीज़ें सेंड करती है, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी एंड शुगर। सो दीज आर द main items which are transported through this route. Europe transported machinery and industrial goods, and Asian countries send their agriculture products, cotton, rubber, tea, coffee, sugar, etc. So main ports are Port Said. Port Said is here. पोर्ट सेड यहाँ पर है आपका, पोर्ट सेड अफ्रीका का पोर्ट है। एडेन, हेयर यू कैन सी एडेन, एंड मुंबई, कोची, these are Colombo, these are the main ports on the Asian side which helps to transport the goods to the Western Europe. So this is our Mediterranean and the Indian Ocean route. Now there is a twist, because the ships have to take a long voyage थ्रू दिस रूट। बहुत लंबा जो है सफ़र, आप देख सकते हो यहाँ से इनको कनेक्ट करना पड़ता था।
अब इस रूट को शॉर्टर करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर एक जो है मैन मेड कैनाल निकाली गई, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वेज कैनाल. It is not a natural canal, it is a man-made canal, and it is a very great achievement of man in the field of transportation and navigation. Because through this route, अब यहाँ से अगर हम सपोज करते हैं कि मुंबई से लंदन तक जाना था शिप्स को, तो पहले वो क्या करेगा, मुंबई से केप टाउन जाएगा, केप टाउन से लंदन जाएगा, तो इतना लॉन्ग वॉयज उसको जो है लेना पड़ता था. लेकिन स्वेज कैनाल जो है वो एक सेंटर से ही इसको यहाँ से कट किया गया. यहाँ से मेडिटेरियन सी आप देख रहे हो, और यहाँ पर भी हमारा जो है सारा अरेबियन सी है. तो यहाँ से इस यहाँ पर क्या निकाली गई, एक कैनाल निकाली गई, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वेज कैनाल. अब क्या हुआ कि जो मुंबई से अगर कार्गोज को लंदन तक जाना है, तो वो सीधा यहाँ से जाएंगे और यहाँ से स्वेज कैनाल के रास्ते मेडिटेरियन रेड सी होते हुए लंदन पहुँच जाएंगे. तो उनका वे जो इतना लॉन्ग था वो क्या हो गया, शॉर्टर हो गया. तो इससे जो है मेडिटेरियन और रेड सी को मिलाकर यहाँ पर एक जो है कैनाल की कंस्ट्रक्शन की गई. दैट वाज स्टार्टेड इन 1854 by a French engineer Ferdinand de Lesseps, and it was completed in 1869. Students, this is very important questions with the point of CBSE board, and it is also in both types, in the terms of map and in the simple question form. So you have to prepare in both the form. This canal is 168 kilometer long, and its width is 365 meter, and the depth is 16.15 meter. So this canal, now what is the importance of the Suez Canal? Because it connects the European countries as well as the Eastern Africa and Asian countries. यानी मेडिटेरियन जो हमारा जो सी रूट था उसको इसने जो है रिप्लेस कर दिया स्वेज कैनाल ने. सो यहाँ पर जो है ये इससे डिस्टेंस जो है इन कंट्रीज़ का वो बहुत ही कम हो गया. जैसा मैंने आपको बताया कि पहले शिप्स को केप ऑफ गुड होप से जो है, यहाँ से केप ऑफ गुड होप हमारा पोर्ट है, यहाँ से जाना पड़ता था और फिर वो यूरोप तक पहुँचते थे, या यूरोप से इंडिया या एशियन कंट्रीज तक पहुँचते थे. तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है दैट इज़ रिड्यूस्ड बाय 9600 किलोमीटर बिटवीन लंदन एंड मुंबई. यही रूट के से जो डिस्टेंस है वो लंदन और मुंबई के बीच का डिस्टेंस 9600 किलोमीटर जो है रिड्यूस हो गया थ्रू दिस कैनाल. इसी तरीके से लिस्बन और मैकाओ में जो डिस्टेंस है वो 5120 किलोमीटर का कम हो गया. इसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं एडन, और ये न्यूयॉर्क. एडन से यहाँ तक न्यूयॉर्क तक जाने पर इतना लॉन्ग वॉयज लेना पड़ता था, जबकि अब हम क्या कर सकते हैं, एडन से मेडिटेरियन सी गए, फिर नॉर्थ अटलांटिक रूट से सीधा न्यूयॉर्क, और ये डिस्टेंस कितना कम हो गया, 10,720 किलोमीटर कम हो गया. तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ यूरोपियन कंट्रीज़ को हुआ, स्पेशली ब्रिटेन जो है उसे इससे कनाल से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि अब वो ट्रेड जो है वो कम टाइम में एशियन कंट्रीज़ के साथ जो है वो ईजिली कर सकता था. इसलिए भी स्वेज कैनाल को ब्रिटिश एम्पायर की जगलर वेन कहा जाता है. यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं इनमें बाकी जो कंट्रीज़ हैं जिनको इनसे बेनिफिट हुआ दैट आर फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क एंड जर्मनी. ईस्टर्न साइड कंट्रीज़ की हम अगर बात करें तो यहाँ पर अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एशिया, अफ्रीका, यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहीं पर ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड, ये पार्ट जो है वो आपका यहाँ पर दिखाई देगा आपको. तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ इस कैनाल से, और क्यों, बिकॉज इट रिड्यूस देयर टाइम अगर रिड्यूस होगा तो हमने हम ट्रांसपोर्ट में किया था कि अगर हमारा टाइम रिड्यूस हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो इट ऑल्सो रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज वेल. द मेन पोर्ट्स टुवर्ड्स द वेस्ट आर लंदन. सेम पोर्ट आपके यहाँ पर वेस्टर्न साइड के आएंगे, लंदन, लिवरपूल, हैम्बर्ग, मैनचेस्टर, साउथहैम्पटन, लिस्बन, ऑल दीज आर द पोर्ट्स situated on the western coast of the Europe. And the
Eastern side, main ports are Aden, Karachi, Mumbai, Colombo, uh, Jakarta, सिंगापुर, हांगकांग, मेलबोर्न, सिडनी, पर्थ, ये सारे आपके यहाँ के आ गए। मेलबोर्न, पर्थ, सिडनी, सिंगापुर, ये सारे जो है हमारे यहाँ का पार्ट है, इसके साथ कनेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे जो पोर्ट है वो यहाँ से चीज़ें जो हैं ट्रांसपोर्ट होती हैं टू द वेस्टर्न यूरोप। जो मेन कार्गोज हैं वही सेम आएगा कि जो वेस्टर्न साइड से कार्गोज आएंगे वो क्या लेके आएंगे, फिनिश्ड गुड्स यानी मशीनरी, मशीनरी के पार्ट, फर्टिलाइजर, ऑयल सीड, मेडिसिन, क्लोथ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूरोप यहाँ से एशियन यहाँ से जो है ईस्टर्न और एशियन और ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है। और इसके एवरेज में ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो यहाँ से फूड ग्रेन्स, जूट, सिल्क, वूल, कोकोनट, पेट्रोलियम, मेटल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। लेकिन फिर भी ये नहीं है कि इसने बिल्कुल ही मेडिटेरियन जो सी रूट है उसको ख़त्म कर दिया है, क्योंकि स्वेज कैनाल जो है उसमें बहुत बड़े बड़े कार्गोस नहीं उतारे जा सकते। तो आज भी जो बहुत बड़े बड़े शिप्स हैं जो बल्कि मटेरियल को लेकर जाते हैं, उन्हें आज भी इस रास्ते से जाना पड़ता है, यानी मेडिटेरियन इंडियन ओशन रूट से जाना पड़ता है। बट no doubt Suez Canal is very important achievement of the man, because it reduced the time, it reduces the cost, as well as it connects the European and Asian countries as well. So these are our three routes in which we covered a canal also, that is Suez Canal. It is very important question. Rest of the routes we will discuss later in our next lecture. Thank you. Have a nice day.